Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss the second part of the chapter Marketing of SYJC OCM. The very first question of today is explain the different functions of marketing. To place the goods in the hands of consumers, there are several marketing functions. The marketing functions can be broadly classified into 15 types. 15. Let's start. The very first marketing function is marketing research. क्या है marketing research? It is a systematic process of finding out information relating to problems in the market. Through marketing research, marketer can come to know the likes, the dislikes, the taste, the preference, the buying habits of the consumers. Accordingly, marketer can make those goods which satisfy the needs of the consumers or to solve their problems. तो ये था पहला मार्केटिंग फंक्शन जिसका नाम था मार्केटिंग रिसर्च. दूसरा था प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. दिस फंक्शन फॉलोज मार्केटिंग रिसर्च. द कंपनी कैन अंडरटेक मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. With the help of research, company can develop new and better processes or new products. और development का मतलब क्या? Refers to application of research findings that is bringing out new and better products. मतलब marketing research से product planning होगा और फिर product का development होगा. तीसरा है buying and assembling. Manufacturers, they buy raw materials and other requirements which are necessary for smooth flow of production of goods and services. समय समय पर मार्केटर्स जगह जगह से गुड्स असेंबल करते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लोकल प्रोड्यूसर्स विद द पर्पस ऑफ सेलिंग दोज गुड्स इन द मार्केट. असेंबलिंग बहुत ही कॉमन है इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. चौथा मार्केटिंग फंक्शन है सेलिंग. सेलिंग को कहते हैं इट इज़ द कोर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. कोर का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. देयर कैन बी नो मार्केटिंग विदाउट सेलिंग. जो गुड्स बनता है अल्टीमेटली उनको बेचा जाता है टू द कस्टमर्स आइदर थ्रू डायरेक्ट चैनल्स और थ्रू इनडायरेक्ट चैनल्स, दैट इज़ थ्रू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. पांचवा मार्केटिंग फंक्शन है पैकिंग एंड पैकेजिंग. Packing means wrapping or covering the goods, and packaging means placing the goods in suitable containers according to the nature of goods. आज packing and packaging plays a very important role in protecting the goods from various hazards. ये hazards क्या क्या चीज़ है? Damage, leakage, pilferage, spoilage, etc. Packaging and packing also offers convenience in handling and using the product's contents. Sixth function is storing and warehousing. Goods today are produced in very large quantities in anticipation of demand. Till the demand is generated, they have to be stored at suitable places. And this suitable storage facilities is provided by warehousing. Warehousing stores the goods when they are not required and delivers them as and when the need arises. So storing and warehousing of goods fills the time gap. It creates time utility. Goods are warehoused from the date of production till they are required for consumption. The seventh marketing function is transporting. ट्रांसपोर्टिंग का मतलब है मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर टू द मिडल मैन्स प्लेस एंड फाइनली टू द कस्टमर्स प्लेस. Various modes of transport are available such as road, rail, air, water, etc. depending upon the nature of the product and requirements of both buyers and sellers. उसके बाद का फंक्शन है standardization. Standardization is a mental process of assigning certain norms or standards to the product. Standardized goods are given a recognized mark called ISI mark.
इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। स्टैंडर्डाइजेशन इज मेनली डन फॉर इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। स्टैंडर्डाइजेशन प्रीसीड्स ग्रेडिंग, यानी ये ग्रेडिंग के पहले आने वाला फंक्शन है। इसके बाद का फंक्शन है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग एक फिजिकल प्रोसेस है विच सक्सीड्स स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग एक प्रोसेस है वेयर गुड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट क्लास एज पर द फिक्स स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स। ग्रेडिंग इज मेनली डन फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है कोई प्रोडक्ट को नाम, मार्क और सिंबल देना। द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग इज टू गिव अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। 11th मार्केटिंग फंक्शन है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। आज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी प्ले अ ग्रेट रोल इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए मार्केटर्स कैन मेक यूज़ ऑफ वेरियस मीडियाज टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग से ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होता है, ब्रांड इमेज क्रिएट होता है और ब्रांड लॉयल्टी भी क्रिएट होता है। फिर उसके बाद मार्केटिंग फंक्शन आता है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप और पर्सनल सेलिंग ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग है। सेल्समैनशिप का मतलब है परसुएडिंग people to buy the goods and services of the sellers through sales force। मतलब सेल्समैन के द्वारा प्रोस्पेक्टिव बायर्स को इंड्यूस किया जाता है कि आप कृपा करके हमारा गुड्स खरीदें। अपार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप अलग अलग प्रमोशनल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि ऑफरिंग डिस्काउंट्स, फ्री गिफ्ट्स, प्रोवाइडिंग गारंटी, इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा। 13th मार्केटिंग फंक्शन इज़ फाइनेंसिंग। आज फाइनेंसिंग और फाइनेंस इज़ नीडेड टू कैरी आउट ऑल द मार्केटिंग फंक्शंस सच एज मार्केटिंग, रिसर्च, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। फाइनेंस इज़ राइटली कॉल्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। दिस फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Besides them, other sources of finance are advance from customers, credit suppliers, discounting of bills etc. आज मार्केटिंग सर्वाइव हो ही नहीं सकता है विदाउट फाइनेंस। 14th मार्केटिंग फंक्शन रिस्क बेयरिंग और रिस्क टेकिंग। देर आर मेनी रिस्क इन बिजनेस। Some risks are insurable and others are uninsurable. Insurable risks are those risks which can be insured by paying the premium. If any loss occurs to the businessman, then it can be compensated by the insurance company. Such insurable risks consist of loss by fire, loss by theft, loss by damage in transit etc. ये है इंश्योरेबल रिस्क जिसका इंश्योरेंस कंपनी निकाल सकती है और अगर नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करेंगी अगेंस्ट अ स्मॉल अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम। लेकिन इंश्योरेबल रिस्क के अलावा अनइंश्योरेबल रिस्क है जिसका इंश्योरेंस नहीं होता है, जैसा कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन एक्सेट्रा। सो रिस्क बेयरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है। और आखिरी मार्केटिंग फंक्शन है प्राइजिंग। प्राइजिंग मीन्स फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी टू हाई और टू लो। टू हाई प्राइजेस विल प्रिवेंट क्विक सेल्स एंड टू लो प्राइस विल नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू द फर्म। तो प्राइस शुड इंक्लूड थ्री थिंग्स। एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दो मार्केटिंग एक्सपेंस और तीन रीजनेबल प्रॉफिट। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए वाइल फिक्सिंग द प्राइस। कंपनी को केयरफुल होना चाहिए वाइल फिक्सिंग द प्राइस, क्योंकि अगर तुमने प्राइस प्रॉपरली फिक्स नहीं किया देन द प्रोडक्ट विल फेल इन द मार्केट। तो ये थे 15 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब जो हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इस क्वेश्चन का नाम है मार्केटिंग मिक्स। क्या है मार्केटिंग मिक्स?
मार्केटिंग मिक्स एक कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट द फर्म blends and controls to achieve the desired result from the target market. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल्स जो एक फर्म मिक्स करता है और कंट्रोल करता है टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस इन द राइट प्लेस. राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट प्लेस एंड राइट टाइम. एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये सबसे अहम क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स का कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. कहते हैं कि देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसमें से पहले 4 जो एलिमेंट्स है दे आर रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स, और जो आखिरी के जो 3 है दे आर रिलेटेड विथ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. मतलब मार्केटिंग ऑफ गुड्स के लिए 4 एलिमेंट्स है और 7 एलिमेंट्स है रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. सबसे पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स और सर्विस दैट आर ऑफर्ड टू कस्टमर्स फॉर सेल एंड आर केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. प्रोडक्ट्स या तो टेंजिबल हो सकता है या तो इनटेंजिबल. टेंजिबल वो होता है विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच्ड. इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, जो दिखाई नहीं देता है, टच नहीं किया जा सकता है, फील नहीं किया जा सकता है. तो फर्म्स नीड टू डिसाइड द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सिंस द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर. मतलब आपका प्रोडक्ट इतना जानदार होना चाहिए कि इट शुड क्रिएट अ फेवरेबल इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर. दूसरा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है प्राइस. इट इज़ बेसिकली द अमाउंट विच अ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर, उसका जो अमाउंट पे करता है उसे प्राइस कहते हैं. utmost care लेना चाहिए while fixing the price of the product because it plays an important role in creating demand for the product. अगर आपको डिमांड क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट के लिए तो आपका प्राइस एकदम फेयर और रीजनेबल होना चाहिए. इट शुड नीदर बी टू हाई नॉर इट शुड बी टू लो. हाई प्राइस अगर आपने फिक्स किया तो इट विल प्रिवेंट क्विक सेल्स. लो प्राइस हुआ तो सफिशिएंट प्रॉफिट्स फर्म को मिलेगा नहीं. प्राइस शुड इंक्लूड 3 थिंग्स: कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सपेंस प्लस रीजनेबल प्रॉफिट. तीसरा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है वो है प्लेस. प्लेस का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. मैं रिपीट करता हूँ, प्लेस का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. आज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मार्केटिंग. बिजनेसमैन नीड्स टू मेक द प्रोडक्ट ईजीली अवेलेबल टू द कस्टमर. मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए इतना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि गुड्स मस्ट बी ईजीली अवेलेबल टू द कस्टमर. बेटर द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हायर विल बी द कवरेज ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. अगर आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एकदम प्रॉपर और इफ़ेक्टिव है तो आपका प्रोडक्ट का कवरेज मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा. चौथा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है प्रमोशन. प्रमोशन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ मार्केटिंग. प्रमोशन एक टूल है ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच हेल्प्स टू पब्लिसाइज द प्रोडक्ट, creates brand image and promote the sales. It helps to convey product का features to the buyers और buyers को induce करता है to buy the product. Promotion mix includes advertising, sales promotion, personal selling etc. तो ये पहले जो 4 P's है ये दे आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच वर इंट्रोड्यूस बाय जेरोम मैकार्थी इन 1960. आई रिपीट, जेरोम मैकार्थी इन 1960. उन्होंने ये 4 P's डेवलप किया है, इवॉल्व किया है, स्पेशली इन रिलेशन टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स.
लेकिन अब जो बैलेंस 3 हम लोग जो करने वाले हैं वो है रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। आज के कंज्यूमर ओरिएंटेड या सर्विस मार्केटिंग में देर आर 3 मोर पीस विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। कौन से हैं 3 और एडिशनल पीस? पहला है पीपल। एक्चुअली ये पहला जो मैं बोल रहा हूँ ये 5th पॉइंट है, तो लेट अस गो सिस्टमैटिकली। 5th एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, पीपल। पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द बिजनेस डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है अपने बिजनेस को। पीपल इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़ हु हेल्प टू डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। अगर आपका बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको सही लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। एट द राइट प्लेस मस्ट बी देयर, राइट पीपल एट द राइट प्लेस। फॉर दिस recruit right people, train them, develop their skill and retain them in the organization। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। अच्छा प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर अ क्वालिटी सर्विस। अगर आपका प्रोसेस बढ़िया रहा तो आप क्वालिटी सर्विस दे पाओगे। इट सेव्स टाइम एज वेल एज मनी। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में बिजनेस कैन इफेक्टिवली मॉनिटर द प्रोसेस एंड दे कैन टेक करेक्टिव मेजर्स एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। और आखिरी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है फिजिकल एनवायरनमेंट। इट रिफर्स टू मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेरिन इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड फर्म टेक्स प्लेस। वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जहाँ इंटरेक्शन होता है बिटवीन अ फर्म एंड कस्टमर। सिंस सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, तो सर्विस प्रोवाइडर शुड इनकॉर्पोरेट सर्टन टेंजिबल एलिमेंट्स। टेंजिबल मतलब जो दिखाई देने वाले एलिमेंट्स है। इसमें क्या क्या चीज़ आता है? लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट एक्सेट्रा। तो ये थे 7 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहला था प्रोडक्ट, दूसरा था प्राइस, तीसरा था प्लेस, चौथा था प्रमोशन। ये दे वर रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स। अब बैलेंस जो 3 एक्स्ट्रा आते हैं दे आर रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ सर्विस। वो है पीपल, वो है प्रोसेस और वो है फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये थे 7 एलिमेंट्स। अब एक छोटा सा सेशन हम करेंगे जो डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो इसमें मैं सबसे पहला मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा अ नीड इज़ क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड एक्सचेंज वाया प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है, उसमें सेलिंग इंक्लूडेड है। मार्केटिंग में सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज़ द एसेंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का ये एसेंस है ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। इट व्यूज़ कस्टमर एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस। वो व्यू करता है कि कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। इट फॉलोज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ मार्केटिंग में कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच होता है। ये एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी होती है। और मार्केटिंग में जो प्लानिंग होता है ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है इन टुडेज़ प्रोडक्ट एंड टुडेज़ मार्केट। लेकिन सेलिंग क्या है? सेलिंग का मतलब है प्रोवाइडिंग द कस्टमर विद द प्रोडक्ट विच ही और शी नीड्स इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। It is a narrow concept. It is a part of marketing. It relies on transfer of possession and ownership from one person to another. It views customer as the last link in the business. It uses production oriented approach. वो था कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, ये है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। वो था इनडायरेक्ट एक्टिविटी, तो सेलिंग इज़ अ डायरेक्ट एक्टिविटी। सर मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म, मार्केटिंग में जो प्लानिंग होता है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है, लेकिन प्लानिंग इन सेलिंग इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ टुडेज़ प्रोडक्ट्स और टुडेज़ मार्केट।
So this was the second part of the chapter marketing of SYJC OCM. Thank you.